Hello friends, I am your educator Miss Kaur at Study Bar. So hope you all are fit and fine in your houses in this pandemic time and your studies are going very well. So today we are going to start a next lecture of chapter number 1, the fundamental unit of life, cell, which we have started earlier, and we have studied some cell organelles in it, and today we are going to study the powerhouse of the cell and many more organelles. So this lecture is going to be very interesting. So without wasting our time, let's start this. So friends, before starting this video, I first recommend you to please subscribe the channel so that you can get, and also press the bell icon so that you can get the latest notification. Only with subscribing you will not get the notification, so you also have to press the bell icon. Also like and share this video so that more people can get help. If you have any doubt, you can write in the comment section below. So now a new surprise, that is you have to join the Telegram group on with the link t.me/studybar, or you can simply search for study bar, and here you can discuss your questions with your teachers, and you will get PDFs of all the chapters and handwritten notes of all the chapters. So just go and join the Telegram group now. So now let's see the motivational thought. So the motivational thought is, dreams are not those which come in sleep. They are those which do not let you sleep. What does it mean? That dreams are not those which come in your sleep. When you are sleeping, dreams are not which come then. I'll become a king. I will get a medal tomorrow in the race or a marathon. So that are not dreams. Dreams are which you think I have to do and which do not let you sleep. Dreams are those. Okay. Next. So now a question which I gave you last time. Let it be here only. So the question which I gave you last time is, who found Golgi apparatus? Yes, I gave you this question and the answer to the question is Camillo Golgi. He was Camillo Golgi. The person was Camillo Golgi. So let's have a sort of information about Camillo Golgi. Camillo Golgi was an Italian doctor and neurologist. कौन थे ये? Italian doctor थे और एक neurologist थे. Means he belonged to Italy. When he was investigating nervous system and he was observing it under microscope and saw apparatus and named after his own name, that is Golgi apparatus. कहते कि वो क्या कर रहे थे, जो नर्वस सिस्टम होता है उसे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और उसको किसके अंदर देख रहे थे, माइक्रोस्कोप के अंदर उसे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, और तभी उनको ना एक क्या कह सकते हैं हम, एक ऑर्गेनेली जैसा स्ट्रक्चर या एक एपरेटस जैसा स्ट्रक्चर दिखा, और उन्होंने उसे अपने ही नाम के पीछे क्या कर दिया, नेम कर दिया, दैट इज गोल्गी एपरेटस. फ्रॉम वेयर डिड गोल्गी गेम, गोल्गी कहाँ से आया, कैमिलो गोल्गी. क्लियर हुआ ये क्वेश्चन. अभी चलते हैं हम आगे. सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर द टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर. द फर्स्ट टॉपिक टू बी कवर्ड इज माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज पावर हाउस ऑफ द सेल. अभी हम ये पढ़ेंगे कि सेल का पावर हाउस कौन होता है जो सेल को जिंदा रखता है ना. ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स. ठीक है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स, दैट आर प्रोटीन फैक्टरीज ऑफ द सेल. जैसे हमारे अंदर प्रोटीन्स बनते हैं ना, तो प्रोटीन फैक्टरीज कौन है, राइबोसोम्स. तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. वी विल कवर इट, एंड एट द लास्ट वी विल बी हैविंग सम होमवर्क क्वेश्चंस फॉर यू. सो द फर्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया. सो माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे मैंने आपको बताया, ये क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, जो सेल को क्या देता है, पावर. तो अभी ये पावर आती कहाँ से है, पावर हाउस क्यों बोला जाता है, पहले तो इसे पावर हाउस ही क्यों माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस बोला जाता है, क्यों प्लास्टिड या क्यों राइबोसोम्स को पावर हाउस क्यों नहीं बोला जाता, क्योंकि ये क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है. अभी एनर्जी तो और भी रिलीज करते हैं, ऐसी कौन सी एनर्जी ये रिलीज करता है या कैसे ये रिलीज करता है. अभी हम पढ़ते हैं कि हमने ये पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस है. पावर हाउस क्यों है, एनर्जी रिलीज करता है. कैसे रिलीज करता है, सम बायोकेमिकल वेट
सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया विच हेल्प इन रिलीजिंग एनर्जी। अभी कहते हैं कि कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या होती हैं? बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती हैं और उससे क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। अभी हाँ, एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में तो होती ही होगी ना, फिजिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में होगी। तो यहाँ पे कोई फिजिकल एनर्जी, कोई केमिकल एनर्जी नहीं है, यहाँ पे एनर्जी एटीपी की फॉर्म में है, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। Not in physical energy, not it is chemical energy, it is adenosine triphosphate energy, that is ATP। क्लियर हुआ यहाँ तक? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस है। क्यों है? क्योंकि एनर्जी रिलीज करता है। कैसे करता है? क्योंकि कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। अभी कौन सी फॉर्म में करता है? जैसे फिजिकल एनर्जी या केमिकल एनर्जी, किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है? दैट इज एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो, पावर हाउस ऑफ द सेल का सारा हमें मेन निचोड़ जो था वो सारा कुछ क्लियर। अभी हम चलते हैं आगे। अभी इसके ऊपर दो तरह की मेम्ब्रेन्स होती हैं। कौन सी? आउटर एंड इनर। आउटर एंड इनर, ये क्या होती हैं? दो तरह की मेम्ब्रेन्स होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। अभी अगर ये डिफरेंट है तो इनमें कुछ डिफरेंसेस भी होंगे। पहली जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या है? स्मूथ है। क्या है? स्मूथ है, नरम है। और क्या है? पोरस है। आगे जो इनर मेम्ब्रेन है, इट इज फॉर्म्ड इनवर्ड्स टू फॉर्म क्रिस्टेई। अभी क्रिस्टेई क्या है? ये कहते हैं कि अंदर को फोल्डेड होती है, क्या बनाने के लिए? क्रिस्टेई। व्हाट इज क्रिस्टेई? क्रिस्टेई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेशन। अभी क्रिस्टेई क्या है? क्या करता है? सरफेस एरिया बढ़ा देता है एटीपी की जनरेशन के लिए। जनरेशन मतलब उसके बनाने के लिए, कि और ज़्यादा बने एटीपी, सेल को और ज़्यादा एनर्जी मिले। अच्छा, अभी आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सेमी ऑटोनोमस है, कि अपना आप को खुद जिंदा रख लेता है, इंडिपेंडेंट है, कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। क्यों? अभी ऐसा उसमें क्या है कि और ऑर्गेनेलिज नहीं इंडिपेंडेंट रख पाती, उसमें ऐसा क्या है? सब कुछ उसमें डीएनए है, अपना राइबोसोम है, डीएनए अपना है। व्हाट इज डीएनए? व्हाट इज डीएनए? डीऑक्सी, it is deoxy. Tell me, what is DNA? What is DNA? It is deoxynucleic acid. DNA deoxy से ही शुरू होता है, that is deoxynucleic acid. राइबोसोम भी हमने पढ़ा नहीं, तो हमें इसकी इन्फॉर्मेशन कैसे है? ये भी हम सारी इन्फॉर्मेशन लेके आगे पढ़ के। सो सी द वीडियो टिल एंड, ओके। सो अभी यहाँ तक क्लियर हुआ? दो तरह की मेम्ब्रेन्स होती हैं, फर्स्ट इज आउटर, सेकेंड इज इनर। अभी आउटर क्या होती है? स्मूथ होती है, पोरस होती है। बट जो इनर होती है वो अंदर को फोल्डेड होती है, क्या बनाने के लिए? क्रिस्टेई। क्रिस्टेई क्या है? एटीपी बनाने के लिए, कि मेरा सेल जो है वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाए, उसके जनरेशन में एक क्रिस्टेई हेल्प करती है, ठीक है। अब ये क्या है? सेमी ऑटोनोमस भी है। क्यों? क्योंकि इसमें अपना खुद का डीएनए है, अपने खुद के राइबोसोम्स। चलो ठीक है, अभी आगे आते हैं इसके फंक्शंस। पहला फंक्शन तो हमें पता चल गया, ये क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को, किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। सेकेंड, दीज हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ वेरियस केमिकल्स लाइक स्टेरॉइड्स एंड फैटी एसिड्स। अभी कहते हैं ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये सिर्फ एटीपी की जनरेशन नहीं करता, एक ही काम नहीं करता, यहाँ पे कई केमिकल्स की सिंथेसिस भी होती है, कई केमिकल्स बनते भी हैं। कौन कौन से बनते हैं? कुछ एग्जांपल्स भी तो दो हमें, कि हमें पता चले कि कौन कौन से बनते हैं। पहला, स्टीरॉइड्स बनते हैं। दूसरा, फैटी एसिड। ऐसे कुछ केमिकल्स की यहाँ पे सिंथेसिस होती है, बनते हैं यहाँ पे, दे आर मेड इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अभी यहाँ पे इज अ स्मॉल डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट इट इज। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, इनर और आउटर। एक यहाँ पे देखो मार्क की हुई है, देखो यहाँ पे मार्क की हुई है ना, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? डीएनए। हमने पढ़ा था कि सेमी ऑटोनोमस है तो डीएनए होता है। सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे वही आएगा जो हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल्स, अभी एटीपी बनाने में कुछ पार्टिकल्स भी तो हेल्प करते होंगे, तो ये क्या मार्क किए हुए हैं? एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल्स। इनर मेम्ब्रेन स्पेस, अभी इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है? मैट्रिक्स होता है, और जिसके बीच में क्या होती है? थोड़ी स्पेस होती है, सो दैट इज इनर मेम्ब्रेन स्पेस। मैट्रिक्स मैंने आपको जैसे बताया कि क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। क्रिस्टेई हमने पढ़ा कि क्या करता है?
सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, किसके लिए? एटीपी की जेनरेशन के लिए। आगे आते हैं राइबोसोम्स, जो हमने पढ़ा कि ये क्या किसमें हेल्प करते हैं? प्रोटीन्स बनाने में। और क्या करते हैं ये, ऐसा क्यों माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा क्या नया ला देते हैं, ये क्या कर देते हैं? ये माइटोकॉन्ड्रिया को इंडिपेंडेंट बना देते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया इज सच कि इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर सेल ऑर्गेनेली, खुद ही अपना खाना बना सकती है। ठीक है, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। अभी बात आती है प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स आर लार्ज सेल ऑर्गेनेलीज विच आर ओनली फाउंड इन प्लांट सेल्स। अभी प्लास्टिड्स क्या हैं? बड़ी बड़ी सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो हमारे में होती ही नहीं। प्लास्टिड्स हमारे अंदर नहीं होते, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें प्लास्टिड्स पढ़ने नहीं है। प्लांट्स की भी हम पूरी जानकारी लेंगे, इसीलिए तो हम मास्टर्स बनेंगे सेल में। ओके, सो प्लास्टिड्स क्या हैं? सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो किस में पाई जाती हैं? प्लांट सेल्स में। अभी प्लास्टिड्स की 3 टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। लेट्स सी व्हाट आर दे। द फर्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट। पहली क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। द सेकंड इज क्रोमोप्लास्ट। सेकंड क्या है? क्रोमोप्लास्ट। पहली ल्यूको, फिर क्रोमो, एंड द थर्ड इज क्लोरोप्लास्ट। देयर आर 3, ल्यूको, क्रोमो, क्लोरो। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हुआ? क्या है? लार्ज बड़ी बड़ी सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो किन में पाई जाती हैं? प्लांट्स में पाई जाती हैं। 3 टाइप्स हैं, दैट आर ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, these are such to confusing names, but हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ताकि हम फिर हमारी मास्टरी में कोई गलती ना हो जाए। ठीक है, क्रोमो एंड क्लोरो। सो पहले हम पढ़ते हैं पहले हम पढ़ते हैं ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड्स। क्या है ये? कलरलेस है, कलर ही नहीं है कोई, कलरलेस प्लास्टिड्स हैं। अभी फंक्शन क्या है? दे टेक पार्ट इन स्टोरेज ऑफ फूड। खाने को अपने अंदर स्टोर करते रहते हैं। दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड, या स्टोरेज ऑफ फूड में ये हेल्प करते हैं। अभी ये भी आगे 3 टाइप्स के हैं। ये भी आगे कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज एम्यूलोप्लास्ट। एम्यूलोप्लास्ट क्या है? स्टार्च की स्टोरेज में। ठीक है, अभी इसके अंदर कुछ स्टोरेज, आगे इसके कुछ स्टोरेज पार्ट्स हैं और उनके कुछ नाम हैं। जैसे प्रोटीन को स्टोर करता है एल्यूरोप्लास्ट, और ऑयल को स्टोर करता है एलियोप्लास्ट। ठीक है, एम्यूलोप्लास्ट किस में हेल्प करता है? स्टार्च की स्टोरेज में। एल्यूरोप्लास्ट हेल्प करता है प्रोटीन्स की स्टोरेज में, एंड एलियोप्लास्ट हेल्प करता है ऑयल की स्टोरेज में। क्लियर हुआ यहाँ तक? ल्यूकोप्लास्ट हैं, कलरलेस प्लास्टिड्स हैं, स्टोरेज में काम आती, स्टोरेज में हेल्प करती हैं, और 3 टाइप्स की हैं, एम्यूलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट एंड एलायोप्लास्ट। क्लियर हुआ? अभी चलते हैं हम आगे क्रोमोप्लास्ट पे। अभी क्रोमोप्लास्ट क्या है? कलर्ड प्लास्टिड्स हैं। अभी कलर्ड प्लास्टिड्स होंगी तो हमारे जो फ्लावर्स होते हैं या जो हमारे फ्रूट्स होते हैं वो भी कलर्ड होते हैं ना, तो ये उनमें कुछ ना कुछ काम तो करती होंगी, है ना? तो इनका काम ही यही है कि ये कुछ ऐसे ऑर्गन्स को क्या देती हैं? कलर देती हैं। These give color to some organs of the plant which attract the insects for pollination. अभी कौन सा ऐसा पार्ट होता है प्लांट का जो पॉलिनेशन में पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स को या पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट करता है? फ्लावर्स। तो मीन्स ये किनको कलर देती हैं? फ्लावर्स को। ठीक है, तो ये किसको कलर देती हैं? फ्लावर्स और फ्रूट्स को कलर देती हैं, और इसीलिए ये क्या है? कलर्ड प्लास्टिड्स हैं। अभी जो क्रोमोप्लास्ट हैं वो कितनी तरह के हैं? 2। इनकी आगे 2 टाइप्स हैं, उन दोनों की 3 की। इसकी कितनी है? 2। फर्स्ट इज नॉन ग्रीन क्रोमोप्लास्ट, सेकंड इज ग्रीन क्रोमोप्लास्ट। ओके, इट्स क्लियर टिल हियर? ओके, अच्छा, तो यहाँ तक क्लियर तो हो गया, बट एक डाउट रहेगा। नॉन ग्रीन क्रोमोप्लास्ट, ग्रीन क्रोमोप्लास्ट, आर दीज रियली द टाइप्स ऑफ क्रोमोप्लास्ट? Are these really the types of chromoplast? No, these are not the types of chromoplast. Chromoplast के कुछ 3 तरह की टाइप्स हैं, ग्लोबुलर, फाइब्रियर। ठीक है, ये 2 टाइप्स नहीं है क्रोमोप्लास्ट की। These are of क्लोरोप्लास्ट। अभी ग्रीन मीन्स उनमें कुछ ग्रीनिश तो होगा, है ना? अभी ग्रीनिश क्या होते हैं? लीव्स होते हैं, तो उनका हमें कुछ ऐसे भी पता चल जाएगा कि वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। हाँ, हमने ये तो पढ़ा ही नहीं कि ये जो ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट है ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सो ये भी हम सारा पढ़ेंगे, सो स्टे
as I told you till the end of the video. Okay, so ये इस पार्ट के लिए आप कर दो कट, ठीक है। वैसे आपको ये बता देती हूँ, दिस टू आर इन क्लोरोप्लास्ट, नॉन ग्रीन और ग्रीन। नॉन ग्रीन होते हैं मीन्स जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, एंड ग्रीन आर विच कंटेन। अभी आती है बात किसकी, क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन कलर प्लास्टिड। अभी ये ग्रीन कलर के होते हैं, इसीलिए तो ग्रीन क्लोरोप्लास्ट और नॉन ग्रीन क्लोरोप्लास्ट थे, है ना। तो ये क्या होते हैं, ग्रीन कलर के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट के सेल का खाना बनता है वो यही तो बनाते हैं। जैसे एनिमल सेल का खाना बनाने में माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है ना, एटीपी जनरेट करता रहता है, तो ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। अभी फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, क्या करते हैं, इसमें कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं या ऐसे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को अपने ट्रैप कर लेते हैं, और उससे ये सारा कुछ क्या बनाते हैं, सेल का खाना बनाते हैं, और उसे कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते हैं, पूरे सेल में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए ये ग्रीन कलर प्लास्टिड्स हैं। और फोटोसिंथेसिस, सेल के इनको फूड फैक्ट्रीज बोला जाता है, कि फूड फैक्ट्रीज हैं, खाना बनाते जाओ भेजते जाओ पूरे सेल में, ठीक है। These are sites of photosynthesis. They trap solar energy of sun and use it for photosynthesis. अभी ये क्या करती हैं, photosynthesis की साइट्स से, जैसे मैंने आपको बताया था। और ये क्या करती हैं, सोलर एनर्जी को ट्रैप करती हैं, और इसे किसके लिए यूज करती हैं, फोटोसिंथेसिस या खाना बनाने के लिए, ठीक है, खाना बनाने के लिए कह लो या फोटोसिंथेसिस के लिए। अभी these are semi autonomous like, किसके जैसे सेमी ऑटोनॉमस, ये कौन सी पढ़ी थी हमने पहले, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली, कौन सी पढ़ी है, इट इज माइटोकॉन्ड्रिया, हमने पढ़ी थी माइटोकॉन्ड्रिया। दीज आर सेमी ऑटोनॉमस लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, दे हैव देयर ओन डीएनए, ओन आरएनए एंड राइबोसोम्स। अभी हमने वहां पे क्या पढ़ा, सिर्फ डीएनए और राइबोसोम, आरएनए कहाँ पे गया, आरएनए को तो कोई महत्व ही नहीं होता, है ना। आरएनए इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, आरएनए इज व्हाट, रीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड, सॉरी आई टोल्ड लाइक डीएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और राइबोसोम, ये तीनों जिस ऑर्गेनेली में हैं वो क्या है ऑर्गेनेली, वो कौन सी ऑर्गेनेली है, सेमी ऑटोनॉमस है, और वो ऑर्गेनेली इंडिपेंडेंट है, उसे किसी दूसरी ऑर्गेनेली की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आगे, अब स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, अब इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम। द इनर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज मेड अप ऑफ कलरलेस मैट्रिक्स कॉल्ड स्ट्रोमा। अभी इसका जो अंदर अंदर इसके अंदर क्या होता है, एक मैट्रिक्स होता है, एक लिक्विड होता है, जिसे क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। अभी इसकी क्या, कितने मेम्ब्रेन्स हैं, दो मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर एंड इनर, ठीक है। और इस स्ट्रोमा के अंदर ना कुछ मेम्ब्रेनियस से स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, ग्रेनम, ठीक है। मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ जिन्हें क्या बोलते हैं, ग्रेना, ठीक है। पहले क्या होता है, कलरलेस मैट्रिक्स होता है, स्ट्रोमा कहते हैं जिसे। उसके बाद उसमें कुछ मेम्ब्रेनियस सिस्टम्स होते हैं जिन्हें हम ग्रेनम बोलते हैं। आगे, हर ग्रेनम में कुछ फ्लैटेंड सैक्स होते हैं जिन्हें हम थाइलाकोइड्स बोलते हैं। हर ग्रेनम में कुछ क्या होते हैं, फ्लैटेंड सैक्स होते हैं, थाइलाकोइड्स, जिन्हें हम क्या, जो कहाँ पे होते हैं, ग्रेनम में होते हैं। ग्रेनम के कुछ आगे, मीन्स ग्रेनम का स्ट्रक्चर ना आपको मैं डिफाइन करूं, ऐसा सा होता है, ठीक है। ये एक पूरा स्ट्रक्चर है ग्रेनम का, और ये सिंगल क्या है, थाइलाकोइड, ठीक है। ये सिंगल क्या है, थाइलाकोइड। इफ आई जूम इट इन, आई थिंक यू विल बी एबल टू सी, आर यू एबल टू सी, यस, ये सारा स्ट्रक्चर क्लियर हो रहा है ना। ये क्या है, स्ट्रोमा, जो हमने पढ़ा कि क्या है, एक कलरलेस मैट्रिक्स है, ये ग्रेनम है पूरा, देखो इन्होंने डिफाइन किया है पूरा, मीन्स हम कह सकते हैं एक ब्रैकेट्स के स्ट्रक्चर के साथ इन्होंने कहा कि ये सारा क्या है, ग्रेनम है, ये सारा क्या है, ग्रेनम है। और इनमें से ये एक सिंगल क्या है, थाइलाकोइड है, और ये क्या होगी, मेम्ब्रेन्स होगी। तो अभी मेन तो ना अगर हम कहें तो कौन है प्रोटीन फैक्ट्री सेल की, थाइलाकोइड ही है। थाइलाकोइड में ही तो क्लोरोफिल होता है, अभी क्लोरोफिल ही है जो खाना बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। हम कहें तो थाइलाकोइड्स ही हैं प्रोटीन फैक्ट्री सेल की, क्यों, क्योंकि उनमें ही तो क्लोरोफिल होता है। अगर थाइलाकोइड्स ना हो
तो क्लोरोप्लास्ट अपनी वैल्यू लूज कर देगा, रेपुटेशन इसकी बिल्कुल डाउन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि थाइलाकोइड्स नहीं है, खाना नहीं बना सकता, और सेल क्या हो जाएगा, मर जाएगा, और पूरा प्लांट मर जाएगा इसके कारण। ठीक है, एक सिंगल सेल से नहीं मर सकता, बट अगर सभी सेल्स भी ना हो तो प्लांट क्या हो जाएगा, मर जाएगा। अभी हम चलते हैं आगे। सो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट ये हमने कर लिया है ना, मैंने यहाँ पे जूम इन लगा दिया। अभी ऑकरेंस ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। अभी हम पढ़ेंगे कि ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पे होते हैं, क्लोरोप्लास्ट किस पार्ट में होते हैं प्लांट के, और क्रोमोप्लास्ट किस पार्ट में होते हैं। सो ल्यूकोप्लास्ट दे आर प्रेजेंट इन रूट्स एंड स्टेम्स। कहाँ पे होते हैं, रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, और कहाँ पे, स्टेम्स में। ठीक है, स्टेम्स ये आप कह दो कि शूट और रूट दोनों में प्रेजेंट होते हैं। अभी शूट क्या है, तो ये देखो, जैसे मैंने ये प्लांट का स्ट्रक्चर क्या किया, ड्रॉ किया, तो ये इसकी रूट्स हैं, ये ऊपर मीन्स ये सारा प्लांट का स्ट्रक्चर है, ये अंडर सॉइल है, तो ये क्या है, इसका रूट सिस्टम है। और ये जो ऊपर है मीन्स जहाँ पे सारा कुछ हो, फ्लावर्स हो, लीव्स हो, फ्रूट्स हो, वो क्या है, शूट सिस्टम होता है। जस्ट गेव यू नॉलेज अबाउट इट, बट आपको ये पहले भी पता होगा बिकॉज दिस कम इन वेरी लोअर क्लासेस सच एज 4th and 5th। ओके, सो अभी ये कहाँ पे होता है, रूट्स और स्टेम्स में होते हैं। कौन, ल्यूकोप्लास्ट। क्यों रूट्स में क्यों होते हैं, रूट्स में, रूट्स कौन सा कुछ इकट्ठा करती हैं, है ना, रूट्स में क्यों प्रेजेंट होते हैं ये, रूट्स में क्या करते हैं, रूट्स अपने अपने साथ वाटर लेती है ना, अपने अंदर से, रूट के अंदर से वाटर आता है, तो वहाँ पे उस स्टोरेज में कौन हेल्प करता है, ल्यूकोप्लास्ट। अभी हमने पढ़ा था इसके कुछ आगे टाइप्स भी है ना, तो वाटर एंड ऑयल की स्टोरेज में हमें कौन सा ल्यूकोप्लास्ट हेल्प करता है, दैट इज एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट, लेट मी मेंशन इट, एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, एल्यूरोप्लास्ट हेल्प करते हैं। और उसके बाद अच्छा, अब इस शूट्स में क्या करते होंगे, स्टार्च, या ऑब्वियस है स्टार्च ही इकट्ठा करेंगे, तो कौन हेल्प करता है, एमियोलोप्लास्ट। ठीक है, आगे आते हैं हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, जो हमने पढ़ लिया। वेट वेट वेट, देयर इज अ डिफरेंस आई हैव रिटन हियर, तो इनको आप इंटरचेंज कर लीजिए। ठीक है, दीज आर बीइंग इंटरचेंज देम। एंड क्रोमोप्लास्ट मीन्स, मैं एक यहाँ पे एरोज लगा देती हूँ। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट हेल्प कर कहाँ पे होते हैं, फ्लावर्स और फ्रूट्स में। क्यों होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, कलर देते हैं फ्लावर्स और फ्रूट्स को, और जितने भी साइड पे इंसेक्ट्स होते हैं उनको बुलाते हैं, दैट कम फॉर द प्रोसेस पॉलिनेशन। आगे आते हैं क्लोरोप्लास्ट, हमने पढ़ लिया कहाँ पे होते हैं, ये लीव्स में होते हैं, ग्रीन पार्ट्स होते हैं शूट के। शूट हमने पढ़ लिया क्या है, ग्रीन लीव्स में होते हैं, या जो भी ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि ग्रीन पार्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल। आगे चलते हैं अब हम। सो नेक्स्ट आर फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड्स। फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड, फर्स्ट 3 फंक्शन तो पक्के ही हमें पता चल जाता है। क्यों, क्योंकि 3 टाइप्स हैं, ल्यूको, क्रोमो, क्लोरो। तो क्रोमो किस में हेल्प करते हैं, क्रोमो किस में हेल्प करते हैं, फ्लावर्स और फ्रूट्स को कलर प्रोवाइड करने में। ल्यूको किस में हेल्प करते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, आई एम जस्ट स्पीकिंग द शॉर्ट फॉर्म्स, क्रोमो, ल्यूको, क्लोरो। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट किस में हेल्प करते हैं, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स, ऑयल्स एटसेट्रा। आगे आते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो तो सेल की फूड फैक्ट्रीज हैं, और किस में हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस या खाना बनाने में। बस फूड फैक्ट्रीज याद रखो, फूड फैक्ट्री से याद आ जाएगा दैट दे हेल्प इन मेकिंग फूड such as not such as chips etc. They just provide a nutritious food, so eat nutritious food also, always, not also, always. So अभी आते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। अच्छा, राइबोसोम्स क्या है, प्रोटीन फैक्ट्रीज है। हर ने एक स्पेशल नेम ले रखा है ना आज। लास्ट स्टेज में क्लोरोप्लास्ट ने फूड फैक्ट्री, प्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट ने फूड फैक्ट्रीज नाम ले रखा है। अभी राइबोसोम्स ने प्रोटीन फैक्ट्रीज नाम ले रखा है, और पीछे माइटोकॉन्ड्रिया ने पावर हाउस नाम ले रखा था। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पावरफुल है, तो उसने क्या नाम ले रखा था, पावर हाउस। आगे आते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल, तो ये कहाँ पे होते हैं, वेयर आर दीज प्रेजेंट, they are present on the surface of RER or lying in the free state in cytoplasm। साइटोप्लाज्म पढ़ लिया ना हमने, क्या है,
कितने पार्ट्स होते हैं अच्छा साइटोप्लाज्म के? Let me know in the comment section below also. And there are two parts of cytoplasm which are cytosol and cell organelles. cytosol और cell organelles पढ़े थे ना आगे. अभी RER भी हमने पढ़ा था, that is rough endoplasmic reticulum. किसकी टाइप है ये? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की. वेरी नाइस. आगे अभी इसके हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं. दे आर मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स. अभी इनमें ये भी सेमी ऑटोनोमस होते हैं, बट इनमें एक कमी है. क्या? क्योंकि इनमें डीएनए नहीं है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड नहीं है. नहीं, ये भी कह देते आई डोंट नीड एनी सेल ऑर्गेनेली, आई एम इंडिपेंडेंट. कौन कौन है इंडिपेंडेंट? प्लास्टिड्स हैं और माइटोकॉन्ड्रिया. आगे आते हैं. दीज आर प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स. अभी ये क्या होती है? मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेलीज होती हैं. दीज आर मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेलीज, जिनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन बाउंड्री नहीं होती, या जिनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती. अभी जो राइबोसोम्स हैं इसी कारण यूकैरियोट्स में भी होते हैं, प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं. क्यों? यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में ऐसा क्या है कि मेम्ब्रेनलेस? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में जो मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेलीज हैं वो भी होती हैं. यही बात है कि ये दोनों में प्रेजेंट है, बट इनकी टाइप्स में डिफरेंस है. दैट इज राइबोसोम्स कंटेन 70s टाइप्स एंड यूकैरियोट्स कंटेन 70s टाइप्स, whereas wait prokaryotes contain 70s type and eukaryote contain 80s type. There is a difference in types. इनमें 80s होती है, उनमें 70s होती है. अच्छा, अभी a question came to me, that is what is the unit which is used to measure the size of the cell. So that is this unit. Wait, I am not able to mark it. ऐसी यूनिट होती है, दैट इज माइक्रोमीटर. इट इज नॉन एज माइक्रोमीटर. ठीक है, इसका सिंबल ये है, माइक्रोमीटर. ओके, इट्स क्लियर. सो अभी हम चलते हैं आगे. सो नाउ कम द पार्ट ऑफ द होमवर्क क्वेश्चन. सो द फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू इज which type of plastids provide color to the flowers? That is leucoplast, chloroplast, chromoplast or mitochondria. Where you have to give its answer in the comment section. It is below in the comment section, and the person who gives the fastest answer will be on the screen next time. So which type of plastids provide color to flowers? They are leucoplast, or they are chloroplast, or they are chromoplast, or they are mitochondria. So let's move further. Next are which cell organelle is known as powerhouse of the cell. Many times we discussed. So what is it? Mitochondria, Golgi apparatus, nucleus, और इट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. कौन सी है? माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी एपरेटस है, न्यूक्लियस है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? क्या बताना है? पावर हाउस ऑफ द सेल. आगे हमारे पास लास्ट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन जो आता है, नेम प्रोटीन फैक्टरीज ऑफ द सेल. प्रोटीन फैक्टर्स कौन कौन सी हैं? राइबोसोम्स हैं, या लाइसोसोम्स हैं, या फिर न्यूक्लियस है, या फिर मेसोसोम्स हैं? दीज आर विच? राइबो, लाइसो, मेसो, या फिर न्यूक्लियस? राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, मेसोसोम्स और न्यूक्लियस. ओके, so it is still here. We have done everything very interestingly, and hope it is all clear to you. And if you still have a doubt, you can ask in the comment section below and answer these questions also, if you want to be on the screen next time and want to be appreciated. Okay, so we will study some more organelles in the next lecture. So bye bye, we'll meet in the next session.